Hello, friends. On the eve of World Homeopathy Day, which we celebrate on April 10th, which is our great master, father of homeopathy, Christian Frederick Samuel Hahnemann sir का बर्थडे है. So, on the eve of World Homeopathy Day on Hahnemann's birthday, I extend my gratitude or Shubhakamna to all the homeopathy fraternity. So, on this auspicious day, I want to discuss, rather share my experience with two important remedies comparison. We generally very frequently use a well proved drug, that is Kali carbonicum, in mind method, applied mind method. But we lessly or infrequently use another Kali group of remedy, that is Kali biochromicum. So today I will point out some important aspect of a Kali biochromicum, commonly we call Kali beach. In physical method or in keynote prescribing, Kali biochrome is frequently prescribed. But in applied mind method, it is infrequently or less prescribed in comparison to Kali carbonicum. So, if we will come to know what are the important aspect of Kali biochromicum, we frequently can prescribe this remedy in applied mind by looking into the personality of the concerned patient. So, as we all know, Kali biochromicum and Kali carbonicum both are in Kali group. So both have the common nature. As we all know, Kali carbonicum, this patient is in the rubric change aversion to be. ये जो मरीज होते हैं, ये जो पेशेंट होते हैं, ये इजीली कौन कौन सा चीज़ को या एनीथिंग को इजीली एक्सेप्ट करते नहीं है चेंज करने के लिए. Why? Because both Kali carbonicum and Kali biocarbonicum is dogmatic and conformism. डॉगमेटिक मतलब क्या है? इनफ्लेक्सिबल. इन लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, कोई इनका सोच में, इनका दिमाग में, इनका थिंकिंग प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है. सो दे डोंट एक्सेप्ट चेंज in their life or in their society or in their family, in their decision. उन लोगों ने इजीली चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड अनदर थिंग इज कन्फर्मिज्म. कन्फर्मिज्म मतलब जो चल आता है सदियों से या लॉन्ग टाइम से, उसको चालू रखना है कन्फर्मिज्म में. जैसे मान लीजिए कोई चीज़ वर्षों पुराने से एक फैमिली का ट्रेडिशन है, या मान लो एक कोई फैमिली में 5-10 आदमी डॉक्टर बनते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन जो भी बच्चे आएंगे वो सब डॉक्टर बनेंगे, किसी को इंजीनियर बनने नहीं दिया जाएगा. तो वो अगर वहाँ पर एक काली कार्ब या काली बाइक्रोमिकम का पेशेंट रहता है, तो वो उसको फॉलो करता है, वो उसको लीड करता है. And both the patients are obstinate. They don't accept change. जैसे आपको पता है, हम लोग फिजिकल मेथड में काली बायोक्रोमिकम का जो एक की नोट प्रिस्क्राइबिंग है, उसका जो नाजल डिस्चार्ज होता है, थिन लॉन्ग अजीब स्ट्रीम, जैसे वो नीचे गिरता है, ऐसे कोई थ्रेड जैसा लंबी जाता है, लेकिन बीच से टूटता नहीं है, क्योंकि उसका ऑब्स्टिनेसी नेचर वो प्रूव करता है. तो बोथ Kali carb and Kali biochromicum have a common symptom of they are very proper
So we have rubric proper true, and both are loyal for their family. So, both have so many common rubrics, but how will we differentiate in our clinical practice so that the infrequent used Calibiacromicum we can use? The difference we will read in the next few minutes. So the important aspect of Calibiacromicum is very obstinate, dogmatic, conformism, change aversion to. So what happened? Calibiacromicum has a rubric that is orientation, sense of orientation decreased. ओरिएंटेशन, सेंस ऑफ ओरिएंटेशन इज डिक्रीज्ड। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, कोई नया अपॉइंटमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ नया चीज़ के बारे में, कुछ नया रूल के बारे में, आप जो नया चीज़ करेंगे, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो कालीबायोक्रोमिकम पेशेंट में वो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन इज डिक्रीज्ड, क्योंकि वो चेंज आवर्सन है, वो डगमाटिक है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है नया चीज़ को। अनदर थिंग इज हिज वेरी फास्टिडियस एंड प्रॉपर ट्रू। जो चीज़ जैसे होना है, जैसे प्रॉपरली रहना चाहिए, वो चीज़ फास्टिडियस वे में वो चाहेगा। एंड द इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स ऑफ कालीबायोक्रोमिकम इज आज ही इज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज डिसीजन or in his thinking process, does not recognize his relatives. अगर relatives मतलब those people who are related to us in our life, in our society, कुछ कुछ हुए में, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली का होते हैं, कोई हमारा इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, तो उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि दोज पीपुल विल एडवाइज हिम और ओरिएंट हिम, so he will not accept all these things, so he will behave like that I am not, मतलब जैसा कि आई एम, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, इसलिए वो ऑब्स्टिनेट है। ठीक है बात। And both Calibiacromicum and Calicarb has love for the family. सो प्रॉब्लम क्या होता है? कालीबायोक्रोमिकम इतना ऑब्स्टिनेट उसका डिसीजन में और उसका थिंकिंग प्रोसेस में होता है, अगर कोई कहाँ पर, हेलो हूँ टिके कथा हो टिके पर, तो कालीबायोक्रोमिकम क्या होता है? वी हैव वेरी फ्यू सिंगल रूब्रिक रेमेडीज, सिंगल रूब्रिक्स इन कालीबायोक्रोमिकम। सो आप लोग को पता होता है, जैसे सिंगल रूब्रिक जो होता है ना, वो बैकबोन ऑफ द रेमेडी होता है। सो वी हैव सम सिंगल रूब्रिक, सॉरी सिंगल मेडिसिन है वो रूब्रिक में, जैसे इन डाइजेशन एग्रावेट, वी हैव सिंगल कालीबायोक्रोमिकम। we have digestion disturbance aggravate, we have single Calibiacromicum। सो क्या होता है कालीबायोक्रोमिकम? डाइजेशन मतलब क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना, डाइजेशन हम बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है, आई कैन नॉट बिलीव ऑल दिस थिंग। तो कालीबायोक्रोमिकम जो इतना ऑब्स्टिनेट है उसका डिसीजन में, उसका कन्फर्मिज्म है, वो डॉगमेटिक है, अगर उसको कोई विरोधाभास हुआ, उसको कोई चैलेंज हुआ, ये सब चीज़ उसको हजम नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं होता है। इसलिए वी हैव सिंगल कालीबायोक्रोमिकम इंडाइजेशन एग्रावेट। उसको मान लीजिए कोई बात, कोई चीज़, कोई सजेशन, कोई ओरिएंटेशन उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतना अकड़ है, इतना डगमाटिक है, ऑब्स्टिनेट है, इसको विरोधाभास तो होगा ही होगा इसका जो रिलेशन में और इसका आईपीआर में। तो ये सब चीज़ उसको एग्रावेट करता है उसका सिचुएशन को। इसलिए क्या होता है, वी हैव सिंगल रेमेडी इन कालीबायोक्रोमिकम
indifference with vexation, distress in stomach after least, उसका मतलब indifference after least distress in stomach with vexation, सिंगल कालीबाइक्रमिकम। उसका मतलब है अगर कालीबाइक्रमिकम का जो लव फॉर फैमिली है, जो केयरिंग पार्ट है, अगर उसको लीस्ट मतलब छोटा सा अगर कोई डिस्ट्रेस हुआ उसका स्टोमक में, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो इंडिफरेंस में चला जाता है, वो किसी को केयर नहीं करता है, वो इंडिफरेंस हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सिचुएशन को छोड़ देता है। अनदर रूब्रिक वी हैव इंडिफरेंस आफ्टर लीस्ट अनोयंस, सिंगल कालीबाइक्रमिकम। इंडिफरेंस आफ्टर लिटिल अनोयंस, लिटिल अनोयंस मतलब चिड़चिड़ापन, विरक्ति भाव, कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस और उसको अनोय करता है, उसको उसमें वेक्सेशन आता है, विरक्ति भाव आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वहाँ से वो क्या करता है, उसका बिहेवियर इंडिफरेंस की तरफ जाता है। जो इतना डॉगमेटिक एंड ऑब्स्टिनेट है, वो चीज़ को वो थोड़ा इंडिफरेंस को ले लेता है, कुछ दिन या कुछ टाइम तक उसमें वो इंडिफरेंस हो जाता है, कोई फर्क नहीं जैसे पड़ता, क्योंकि उसको वो चीज़ वेक्सेशन करता है। तो इसलिए वी हैव रूब्रिक दैट in कालीबाइक्रमिकम वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। जब ये इंडिफरेंट स्टेट होता है, कोई वेक्सेशन का स्टेट आता है, we have a single rubric that identify the कालीबाइक्रमिकम nature, that is impatience from heat and irritation in larynx। वो इंडिफरेंस तो जाता है, लेकिन अंदर अंदर में इम्पेशेंस हो जाता है, उसका पेशेंस खो लेता है। क्यों? रूब्रिक को समझिए। इम्पेशेंस फ्रॉम हीट एंड इरिटेशन इन लैरिंग्स। जनरली आप लोग को पता है, हम लोग एलोंगेटेड एवोला के लिए फिजिकल मेथड में कालीबाइक्रम को प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये माइंड के साथ, आदमी का पर्सनालिटी के साथ रिलेटेड है। कैसा? पेशेंट लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज ए अपर पार्ट ऑफ आवर थ्रोट which contains the muscular power which control our voice। तो इसका लारिंग्स में अगर मेटाफोरिकली हम समझेंगे, कोई हीट मतलब कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आया, कोई इरिटेशन आया, जैसे वो कहाँ से आता है? जब डाइजेशन नहीं होता है उसको, कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई चीज़, अगर वो इतना डॉगमेटिक ऑब्स्टिनेट है, कन्फर्मिज्म में है, तो विरोधाभास तो होगा। अगर कोई चीज़ उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसको वेक्सेशन होता है, उसको एनोयंस आता है, तो वहाँ पर वो इंडिफरेंस होके अंदर अंदर में इम्पेशेंस होता है, क्योंकि उसका वॉइस जो है, जो पावर है, जिसके थ्रू में वो कंट्रोल करता था, वो बंद हुआ है, वो इंडाइजेस्टेड स्टेट में है, वो डिस्टर्बेंस, टर्मोइल स्टेट में है। तो ये सिंगल कालीबाइक्रमिकम है, इम्पेशेंस फ्रॉम हीट एंड इरिटेशन इन लैरिंग्स। तो उसका लैरिंग्स जो है, जो वॉइस है, जो वॉइस को कमांड करता है, वो अगर कोई डिस्टर्बेंस स्टेट में जाता है तो वो वहाँ पर इम्पेशेंस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कालीकार्प जो होता है, कालीकार्प इम्पेशेंस चिल्ड्रेन अबाउट हिज। तो उसका जो चिल्ड्रेन है, जो डिपेंडेंसी है, उनका अगर कोई परेशानी हुआ, उनका अगर कोई चीज़ ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि वो भी कन्फर्मिज्म में, वो डॉगमेटिक में, वो चाहता है ये चीज़ ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये भी चाहता है ऐसे ऐसे चीज़, ये होता है, जो पहले से सदियों से चले आता है, रूल रेगुलेशन के चलते वो होना चाहिए। तो वहाँ पर कालीकार्प क्या होता है, उसका चिल्ड्रेन को अगर कोई परेशानी होता है, वो वहाँ पर इम्पेशेंस होता है। लेकिन ये क्या होता है, इसका अगर वॉइस लारिंग्स होता है, मेटाफोरिकली अगर हम समझेंगे, इसको अगर इंडाइजेस्ट हुआ, कोई चीज़ अंदर नहीं गया, कोई विरोधाभास हुआ, वो वहाँ पर इम्पेशेंस होके इंडिफरेंस को चले जाता है। तो वहाँ पर कालीबाइक्रमिकम का एक फील आता है, डिल्यूजन, हेड इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी। इसमें कालीकार्प नहीं है, ये कालीबाइक्रमिकम का रूप। हेड क्या होता है? एक आदमी का पहचान है उसका सर। जैसे बोलते हैं ना, मैं सर झुका के नहीं चल सकता, सर उठा के चलना चाहता हूँ। तो उसको लगता है कि मेरा बात नहीं रहता है,
मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बात कोई सुनता नहीं है, इसलिए उसको गुस्सा आता है, अनोयंस होता है, वेक्सेशन होता है और सोचता है कि मेरा आइडेंटिटी ख़त्म हो गया। जो हेड है अगर वो बॉडी से सेपरेटेड हो जाएगा उसको वो टाइप का फीलिंग आ जाएगा। डिल्यूजन, हेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। लेकिन यहाँ पर काली कार्व क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। काली कार्व अपना बात को, अपना चीज को दूसरे के ऊपर में इम्पोज करने के लिए, थूपने के लिए दो इम्पोर्टेंट बिहेवियर मैनिफेस्ट करता है, दैट इज सेंसोरियस एंड डिक्टेटोरियल, व्हिच काली बायोक्रम डज नॉट हैव दैट टू क्वालिटी। काली कार्व डिफरेंशिएट यहाँ हो जाता है। काली कार्व अपना बात को, अपना कन्फर्मिज्म जो नेचर है, उसका जो डॉगमेटिक नेचर है, उसको इम्पोज करने के लिए वो आपको सेंसर करेगा या डिक्टेट करेगा कि नहीं ये करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, काली बायोक्रमिकम यहाँ से डिफरेंस हो जाता है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बहुत सारे काली कार्व प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम देखते हैं कि पेशेंट कन्फर्मिज्म, ऑब्स्टिनेट, डॉगमेटिक, चेंज एवर्सन नेचर रखता है, लेकिन पेशेंट सेंसुरियस नहीं है, पेशेंट डिक्टेटोरियल नहीं है और पेशेंट को सोचता है कि मेरा आइडेंटिटी ख़त्म हो गया, मेरा क्या है, वो पेशेंट सोचता है, इम्पेशेंस होता है, मेरा कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि देयर इज ए हीट एंड इरिटेशन इन द लैरिंग्स और पेशेंट इंडिफरेंट स्टेट को चला जाता है। देन वी कैन थिंक ऑफ काली बायोक्रमिकम इंस्टेड ऑफ काली कार्बोनिकम। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, काली कार्व ऐसा क्यों करता है, क्योंकि काली कार्व मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर इन कैलकुलेटिंग में है, उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए वो क्या जो सोचता है, जो पुराना कन्फर्मिज्म चीज़ है उसको इम्पोज करने के लिए वो डिक्टेटोरियल बिहेव और सेंसोरियस बिहेव शो करता है। बोथ हैव केयरिंग फॉर द फैमिली, बोथ इज प्रॉपर ट्रू, बट द डिफरेंस इज दिस। एंड बट काली कार्व क्या करता है, अगर ज़्यादा चीज़ बढ़ जाता है तो कुछ देर के लिए क्लोजिंग आइज एमिलरेशन। क्लोजिंग आइज एमिलरेशन में मतलब आई इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वहाँ से वो देखेगा, सुनेगा, ये चीज़ नहीं हो रहा है तो उसको वो सहन नहीं हो पाएगा, तो कुछ दिन तक चुप हो जाना या आई बंद कर देना, तो इन्फॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा, तो उसमें उसको थोड़ा आराम आएगा। एंड अनदर थिंग इज, काली कार्व एक पिकुलियर बिहेवियर शो करेगा, क्वाइट वांट्स टू बी ड्यूरिंग चिल मतलब जो माहौल सही नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंड है, मतलब वो अनकंफर्टेबल है, वो कंफर्ट नहीं, वार्मथ नहीं है, उसका बात कोई सुन नहीं रहा है, वो प्रीफर करेगा नहीं थोड़ी देर तक क्वाइट रहेगा। लेकिन उसका बेसिक नेचर है वो डिक्टेटोरियल है, अनसेंसोरियस है। काली बायोक्रमिकम क्या है, काली बायोक्रमिकम ड्यूटी में है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। वो ड्यूटी करेगा, वो समझेगा कि नहीं ये मेरा ड्यूटी है, मैं ये फैमिली को ये बोलूँगा, अगर ये हमारा फैमिली का व्यवहार है, सदियों से चले आता है और ये चीज़ होना चाहिए, वो ट्राई करेगा इम्पोज करने के लिए। लेकिन अगर उसका बात और वॉइस नहीं रहता है तो वो वेक्सेशन होकर इंडिफरेंस और सोचेगा कि मेरा आइडेंटिटी कुछ नहीं है। लेकिन काली कार्बोनिकम बोथ ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, आदमी एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा जो बोलते दायित्व लेके कुछ चीज़ को करना चाहता है, इसलिए वो इम्पोज एंड सेंसोरियस को चला जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है, उसका कैलकुलेटिंग पावर जो एबिलिटी है वो लैक करता है। सो दीज आर सम डिफरेंशिएटिंग पार्ट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज आई वांट टू फोकस हियर इज काली बायोक्रमिकम। काली बायोक्रमिकम आप लोग ट्राई कीजिए, दीज आर सम डिफरेंशिंग पॉइंट। आई होप यू लाइक दिस discussion, so please try to apply Kali Biochromicum in your practice. Thank you.